I hope you have opened page number 94 of your book. Dear students, as in the last class, we studied about isotopes and about radioisotopes, right? We studied that they have certain applications and read one of it, which was about atomic energy. So let's begin today by reading its use in the field of medicines. Radioisotopes are used for diagnosis, treatment, and research. They are the chemical tracers emitting gamma rays or positrons, which can provide diagnostic information about internal human body parts and the functioning of special organs, including the human brain. We will be studying main three uses of the radioisotopes, जैसे कि they have been written on your slide as well as in your books. We will be studying about nuclear batteries. We will be studying about activity of organs, the cancer cell destruction, and also about sterilization. Okay, so coming towards pacemakers. Pacemakers, as we studied in the previous chapter as well, can be a faulty one. They are used to stimulate a regular heartbeat when the body's natural electrical pacing system is irregular, right? Or not performing its function properly. Over the years, various power sources have been used for pacemakers, including a radioactive material called polonium 238, which continues to emit energy in the form of rays. तो पेसमेकर्स के बारे में we studied in the last class, right? They are the cells in your heart. जब वो faulty हो जाते हैं या तो फिर न्यूक्लियर बैटरी यूज की जाती है. ठीक है, this is also one of the application of radioactive isotopes. They have a very long life and they can be very small. They are used in heart pacemaker. The heart pacemaker is inside your chest where it delivers a small regular electric shock to heart to keep it beating. Nuclear medicines use radiations to provide information about the functioning of a person's specific organs. I'm moving towards its use number 2 in the field of medicines. Okay, it's the second paragraph. Okay, in most cases, the information is used by the physicians or the doctors to make a quick diagnosis of the patient's illness. The thyroid, bones, heart, liver, and many other organs can easily be imaged, and disorder in their functions can be revealed. In some cases, radiations can be used to treat diseased organs or tumors. तो जिस तरीके से आपने एक्सरे देखा होगा एयरपोर्ट पर, जब आपका लगेज पास करता है तो आपका एक स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाता है कि आपके लगेज में क्या क्या है. इसी तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे बेसिकली टेल अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गन्स, और आपके ऑर्गन में से कौन सा फॉल्टी वन है तो फिजिशियन जो है वो उसको बिल्कुल डिटेक्ट कर लेता है. ओके, द पाथ द आइसोटोप टेक्स इनसाइड द बॉडी can be traced on a computer screen. Okay, the activity of organs can be studied in this way. Many medical products today are okay. We are studying about the third use now. Come towards the cancer cell destruction. Write on your books as well. Cancerous growths are sensitive to damage by radiation. For this reason, some cancerous growth can be controlled or eliminating by irradiating the area containing the growth. So if a person has developed cancer, he is irradiated, mean radiations are thrown over the part to stop cancer growth. हम एक टेक्निक आपने काफी दफा सुनी होगी, someone is unfortunately suffering from going through the phase where he is having like cancer, right? तो क्या किया जाता है कि रेडिएशंस आर थ्रोन, उसके ऊपर रेडिएशंस फेंकी जाती हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमोथेरेपी. दैट प्रोसेस इज नोन एज chemotherapy. Write on your books the headings that I have given in front of you. They are present on the slide. Okay, so many medical products today are sterilized. Sterilized का क्या मतलब होता है? It's your last line of this paragraph. Sterilization is the process of making something free from bacteria or other living microorganisms. तो अगर हमने कोई डॉक्टर्स ने कोई परफॉर्म करना है कोई सर्जरी, राइट, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो उनका इक्विपमेंट है जो कि वो ऑपरेटर्स यूज़ करने लगे हैं पर्सन की सर्जरी के लिए, इट शुड बी फ्री ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट हैपन्स कि उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, उसको फ्री ऑफ बैक्टीरिया बनाया जाता है. हाउ? by the help of radioisotopes. Okay,
Many medical products today are sterilized by gamma rays from a cobalt 60 source. Cobalt 60 is the radioisotope जिसको use किया जाता है sterilization के लिए. It is a technique which is much cheaper and more effective than steam heat sterilization. The disposable syringe is an example of a product sterilized by gamma rays. तो gamma rays को भी use किया जाता है. Gamma rays क्या होती हैं? Gamma rays आप पढ़ते रहेंगे in your higher classes as well. Gamma rays or gamma radiation is a very strong penetrating radiation which is arising from the radioactive decay process of atomic nuclei. जब किसी न्यूक्लियाई को बोम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन के साथ, जो हमने लास्ट क्लास में प्रोसीजर देखा कि रेडियो आइसोटोप को जब बम्बार्ड किया जाता है उसके न्यूक्लियाई को किसी न्यूट्रॉन के साथ, तो एक दूसरे किस्म का न्यूक्लियाई निकलता है, उसके साथ ही कुछ एनर्जी निकलती है, राइट? उसके साथ एनर्जी जो निकलती है या कुछ और रेडिएशंस जो निकलती हैं वो होती हैं, उनमें से एक फॉर्म है गैमा रेज. गैमा रेज भी एक रेडिएशंस हैं जो कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस में रिलीज आउट होती हैं. Okay, because it's a cold process, radiation can be used to sterilize a range of heat sensitive items such as powders, ointments and solutions, as well as biological preparations such as bone, nerve and skin to be used in tissue grafts. So we studied about the use of isotopes as pacemaker batteries, their use in identifying the disease, in cancer cell destruction, plus in sterilization. Okay, now we are moving towards its use in the field of industry. यहाँ पे भी हम दो तीन इसके uses पढ़ेंगे about his performance. If the metal object is faulty one, तो हम इसकी देखेंगे कि performance कैसे हो रही है metal object की, और हम उसको observe करेंगे through radioisotopes. Plus we will be also studying about the thickness of metals. किस तरह से thickness of metals को detect किया जा सकता है, किस तरह पता लगाया जा सकता है कि metal कितना thick है through radioisotopes. Radioactive materials are used to inspect metal parts and their strength. Strength is मजबूती of wells across a range of industries. बहुत सी चीज़ों की स्ट्रेंथ के बारे में और उसके मेटल पार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके बारे में, उसको एनालिसिस करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ का रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में. Gamma radiations work in much same way as X-rays screen luggage at airports. Got it? The process of using gamma radiation is used to validate the integrity, the mazbuti of concrete and welds on fluid vessels, pipelines, और critical structural elements. तो जो वेसल्स और जो पाइपलाइंस जो हैं उनके अंदर गैमा रेज के थ्रू गैमा रेडिएशन जिनके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा, उनको यूज़ किया जाता है पता कराने के लिए कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कोई फॉल्टी वन तो हम यूज़ नहीं कर रहे. तो ये सब हो रहा है रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू. ओके, नाउ we have, for example, we have to inspect some new oil or gas pipeline. Special film is tapped over the weld across the outside of the pipe. The ability to use radioisotopes to accurate measure thickness is widely used in the production of sheet materials, including metals, textiles, paper, plastics, and others. तो हमने देखा इसके दो यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में. वन इज अबाउट द परफॉर्मेंस टू डिटेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स टू कीप एन आई ऑन इट, एंड सेकेंडली इसका यूज होता है थिकनेस ऑफ मेटल्स को जज करने के लिए. Okay, now we are moving towards the agriculture uses. Fertilizers are very expensive and if not properly used can cause water pollution. Efficient use of fertilizers is very helpful in developing and underdeveloped countries. It is important that as much of the fertilizer as possible finds its way into the plants and that a minimum is lost to the environment. Fertilizers labeled with a particular isotope such as nitrogen 15 or phosphorus 32 provide a mean of finding out how much is taken up by the plant and how much is lost, allowing better management of fertilizer application. Fertilizers जिनको आम जुबान में खाद कहा जाता है, ठीक है, ये फेंके जाते हैं सॉइल के अंदर जहाँ पे प्लांट्स ने ग्रो करना होता है.
राइट। अब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेटा, व्हाट दे डू इज कि ये प्लांट की नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस स्पेशली दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो सॉइल को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स देने के लिए, सो दैट प्लांट कैन टेक अप इट फ्रॉम द सॉइल, सो इसको यूज करता है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। गॉट इट। अब सॉरी, अब होता ये है बेटा, कभी कभी जो एलिमेंट है वो प्रॉपरली प्लांट टेकअप नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट में लूज हो जाता है, विच इज कॉजिंग पोल्यूशन। ठीक है, एलिमेंट में सॉइल में एलिमेंट्स पड़े हैं, दे विल कॉज पोल्यूशन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बी श्योर कि जो प्लांट है वो एफिशिएंट यूटिलाइज कर रहा है अपने फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन और कोई भी रेडियो आइसोटॉप, ठीक है, वो केमिकली प्ले नहीं करता किसी चीज के साथ, रादर फिजिकली बस वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है। गॉट इट। तो होता यह है कि जब हम अपने फर्टिलाइजर्स को रेडियो एक्टिव बना देते हैं, मतलब अगर नाइट्रोजन 14 यूज हो रहा है जो कि रेगुलर नाइट्रोजन है, जो कि आपके हवा में भी प्रेजेंट होती है, अगर वो रेगुलर यूज हो रहा है तो उसकी जगह हम नाइट्रोजन 15 को यूज कर लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन 15 जो है, 15 इज द एटॉमिक मास। ठीक है, ये मास नंबर होता है। तो जो नाइट्रोजन 15 है जिसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन 14, तो जब नाइट्रोजन 15 को यूज़ किया जाता है तो वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो प्लांट के अंदर जाएगा हम डिटेक्ट करते जाएंगे कि कितना नाइट्रोजन 15 प्लांट के अंदर गया है, कितना सॉइल में प्रेजेंट है, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे थ्रू स्पेशल डिटेक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से मेक श्योर किया जाता है कि प्लांट जो है वो एफिशिएंट यूज़ कर रहा है फर्टिलाइजर्स को और नॉट। So we are going to study about an other property of carbon 14. ठीक है, मैंने आपको नाइट्रोजन 15 की अभी एग्जांपल दी, आपकी बुक में फॉस्फोरस 32 की भी एग्जांपल दी गई है। Chemically, the P32 atoms behave in exactly the same way as non-radioactive P31 atoms. ठीक है, P32 will behave similarly as when we are comparing it to the P31. Plant के अंदर जाके they will be taking part in plant growth and development. लेकिन होता यह है कि बस उसको चेक करने के लिए कि ये प्लांट एफिशिएंट इसको टेकअप कर रहा है सॉइल से, और प्लस इट्स परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी, और जो परसेंट फर्टिलाइजर दिया जा रहा है सॉइल को वो प्लांट में कितना एंटर हो रहा है, वो प्लांट उसको कितना यूटिलाइज कर रहा है, तो हम उसको रेडियो आइसोटोप उसके अंदर यूज करते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल आइसोटोप जो कि रेडिएशंस को एमिट नहीं करता। ठीक है, तो ये मार्कर की तरह यूज होता है। ठीक है, इससे मार्क किया जाता है, द P32 acts as a marker and so the path the phosphorus takes from the soil into the roots up to the stem and into the leaves and flowers can be followed. ठीक हो गया। Now we are going to study about carbon 14 and carbon 12. Carbon 12, carbon 13 और carbon 14 कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। जो कार्बन 12 जो है वो रेडियो आइसोटॉप नहीं होता, जो कि आमतौर पर ज़्यादा अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में होता है, बट कार्बन 14 जो है वो ज़रा रेडिएशंस को एमिट करता है। A photosynthesizing plant does not strongly discriminate between most abundant carbon 14 and carbon 12. Sorry, most abundant carbon 12 and then carbon 14. During photosynthesis, in the presence of carbon 14, the compounds formed become labeled with the radioisotope, and this process is very helpful in studying the changes which is occurring during photosynthesis. Now, अभी तक हमने फोर, बल्कि लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक एनर्जी का यूज़ पढ़ा, फिर हमने मेडिसिनल यूज़ पढ़ा ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, वी स्टडीड द इंडस्ट्रियल यूजेस एंड देन वी move towards the agricultural uses. Now we are moving towards a total different topic. Okay, अब हम बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं विच इज़ अबाउट आयंस एंड बॉन्डिंग। ठीक है, ये बेसिकली आपके रिएक्शंस को शो करेगा। इट इन्वॉल्व्स मोर केमिस्ट्री, सो क्लास प्लीज़ बी अटेंटिव, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी फिर आई एम नॉट श्योर कि आपको घर पे खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, रीड व्हाट आई टीच यू इन द क्लास डेली, ताकि कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछें। ठीक है, you have to read it daily. Got it? So we are moving towards a very important topic. It is uh, the base of chemistry, you can say.
ठीक है, ये केमिस्ट्री की बेस होती है. सो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल कि आप वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अभी ही अंडरस्टैंड कर लें. So we know that if you tore up a piece of paper into smaller and smaller pieces, you could eventually get down to a molecule of a paper. That molecule in turn is constructed of atoms. Atom combines in different ways to make up all the substances in the universe, including paper and you. You may be already familiar with atoms, but have you ever heard of iron? आप लोगों में से किसी ने आयन के बारे में सुना कभी? एटम्स के बारे में तो सबने सुना, ठीक है. हम अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते आते हैं व्हाट इज एन एटम. किसी ने कभी आयन के बारे में सुना होगा? अगर नहीं सुना तो लेट्स स्टडी अबाउट इट. एन आयन इज slightly different form of an atom. Maybe you have seen two cars that looked exactly alike. Well, perhaps you thought they were alike, but one of the cars had had windows, a video screen, and leather seats. An iron is a kind of like that car that is different in some way. To understand the difference, we have to look a bit closer into the atom. ठीक है, आयन्स और एटम्स तकरीबन एक तरह के लग रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर प्रेजेंट होती है. ठीक है, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है, ऑल्दो वो बिल्कुल एक तरह के लग रहे होते हैं और उनको कहा भी एक ही नाम से बुलाया जाता है. You may know that an atom is made up of smaller particles, right? We studied about protons, neutrons, and electrons. But let's look closer at how they make up an atom. Bunched together in the very center of an atom are the protons and neutrons. They make up the nucleus. We know that. Protons are special because they have a positive charge. हमें ये भी पता है, like a plus sign on the battery. The number of protons in an atom determines what the atom is. For example, 1 proton means an atom of hydrogen, and 8 protons mean an atom of oxygen. So atomic number, as you know, can be used to identify which atom is which. राइट अगर किसी हमें पता चलता है कि यहाँ पे एटम है और इसके 6 प्रोटॉन्स हैं, तो हमें पता प्रोटॉन्स बेसिकली डिटरमिन करते हैं एटॉमिक नंबर को, राइट. तो प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर है. सो आई एम यूजिंग द टर्मिनोलॉजी एटॉमिक नंबर देन द प्रोटॉन नंबर. ओके, सो थ्रू द एटॉमिक नंबर वी कैन गेस विच एलिमेंट इज विच. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि इस एटम के 6 प्रोटॉन्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि कार्बन जो है ये कार्बन है. इसी तरीके से अगर एक एटम में 1 प्रोटॉन है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये हाइड्रोजन है. इसी तरीके से अगर किसी एटम में 8 प्रोटॉन्स हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये ऑक्सीजन है. ठीक है, तो जो प्रोटॉन नंबर है बेसिकली वो डिटरमिन करता है व्हाट द एटम इज. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल विद नो चार्ज. How is an ion different? If you have ever played with the bar magnet, you may remember that there is a north and south pole, a positive और a negative end. किसने मैग्नेट देखा हुआ है? आपने देखा होगा कि एक साइड के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक साइड के ऊपर नेगेटिव होता है. ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, आई होप जब आप मैग्नेट्स की एक तरह की साइड्स को आपस में अटैच करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना, वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, इनफैक्ट इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वो भी यही रोल प्ले करते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता है कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव और बेसिकली अट्रैक्टिंग ईच अदर. अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड के लिए. ओके, in fact an atom has the same number of electrons and protons. That's why all negative charges cancel out all the positive charges. So that is why atom is neutral. अब देखें, हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो हैं जो हमारे एटम में प्रेजेंट हैं, दे हैव सेम नंबर एज प्रोटॉन्स. 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. 6 पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के तो 6 ही इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होंगे. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता.
जो उसके साथ प्रेजेंट होता है प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में। अब देखें, अगर 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर टग ऑफ वॉर हो रही है, टग ऑफ वॉर यू नो दैट राइट, टग ऑफ वॉर, एक साइड पर 6 बॉयज हैं और एक साइड पर 6 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो जो इफेक्ट है वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोटॉन्स हैं दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से एटम के अंदर होता है, ठीक है। अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक दूसरे का जो इफेक्ट है बेटा, ये एक दूसरे का इफेक्ट को कर देते हैं कैंसल, और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। However, if you add or take away one or more electrons, ठीक है, then it becomes either negatively charged or positively charged। अब हम कंसिडर करते हैं कि एक एटम है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हम 7 इलेक्ट्रॉन्स के एग्जांपल लेते हैं। मैंने उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, राइट, मैंने उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, उसके सबसे बाहर वाले शेल के अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने रह गए? 6, ठीक है। 7, एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने चोरी कर लिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, ठीक है, पीछे रह जाते हैं 6, राइट। अब बेटा ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 6 कितने हैं? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कौन सा ज्यादा है? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नेगेटिव वन, क्योंकि नेगेटिव का एक चार्ज तो मैंने उठा लिया है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 ही प्रोटॉन्स थे, तो एटम तो न्यूट्रल था, ठीक है, क्योंकि जितने नेगेटिव थे उतने ही पॉजिटिव थे। -2 और +2 इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से -7 + 7 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। अब एटम तो न्यूट्रल नहीं रहा क्योंकि एटम के अंदर जो है प्रोटॉन की अमाउंट जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाउ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैंने एक ले लिया है तो एटम के पास पीछे रह गए 6 और प्रोटॉन पीछे है 7, ठीक है। तो अब जो एटम है बेटा वो न्यूट्रल नहीं रहा, वो 0, उसकी वैल्यू 0 नहीं रही, उसके चार्ज न्यूट्रल नहीं रहा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा प्रेजेंट है। प्रोटॉन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो एटम के ऊपर एज अ होल भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इंडिकेट करने के लिए कि ये अब पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। आई होप यू गेट इट, ठीक है। सच चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। लगते दोनों सिमिलर है लेकिन उस एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक एटम के साथ थोड़ी चोरी हो गई है तो वो उसको आयन कह दिया गया, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जो एटम है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जैसे कि यू नो दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, ठीक है। हर चीज दुनिया में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। हर दुनिया में चीज, इफ यू आर क्राइंग यू डोंट वांट टू क्राई, यू वांट टू बी स्टेबल। अगर आपको कोई टेंशन हो रही है तो आप चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाए, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो स्टेबिलिटी की तरफ हमें नेचर जो है ऑटोमेटिकली लेकर जा रही होती है। गॉट इट। तो अगर हम देखते हैं, आज सिर्फ हम आइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम ये देखेंगे कि आइंस जो हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके तो अभी हम देख रहे थे हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। एटम के अंदर जब, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, रादर वी विल गो टुवर्ड्स दिस एग्जांपल ऑन योर बुक। जब एटम के सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जब एटम के हो जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये स्टेबल है। स्टेबिलिटी का कैसे पता चलता है? जब एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, सॉरी, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। द एटम दैट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर एटम से एक इलेक्ट्रॉन मैंने चोरी किया है,
ठीक है, तो उसके ऊपर वी हैव पॉजिटिव साइन। ठीक हो गया। तो जब पॉजिटिव साइन वाला हमारे पास आयन होता है उसको हम कहते हैं कैटाइन। उसको क्या कहा जाता है? कैटाइन। लेकिन जब जब किसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबिलिटी कब अचीव होनी थी? जब उसके बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते। ठीक है, अभी उसके वैलेंस, वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। ठीक है बेटा, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वो सबसे दूर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होना और रिमूव होना आसान होता है एज कम्पेयर टू द इनर वन। तो हम हमेशा, मैं जब कहूंगी आउटर मोस्ट शेल, इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है ताकि जो एटम है वो स्टेबिलिटी अचीव कर ले। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो द एटम गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड इट बिकम्स एन आयन। उस आयन को कहा जाता है कैटाइन। क्या कहा जाता है? कैटाइन। ठीक है, इट इज रिटन ऑन योर बुक एज वेल एज ऑन द स्लाइड। उस आयन को कहा जाता है कैटाइन। लेकिन कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं सबसे बाहर वाले शेल में और स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम गेन कर लेता है। इट एड्स अप, इलेक्ट्रॉन बेसिकली एड्स अप टू द आउटर मोस्ट शेल और वो 7 की जगह 8 हो जाते हैं। अब प्रोटॉन्स का नंबर तो 7 ही था, वो तो 7 ही रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन्स का नंबर तो हमेशा 7 था। न्यूक्लियाई को हम कुछ नहीं कर रहे, न्यूक्लियस को हम टच भी नहीं कर रहे। प्रोटॉन का नंबर 7 रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चूंकि रिमूव कर दिया गया है, एड अप किया गया है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन यू नो कैरी नेगेटिव चार्ज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एड अप किया जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर, राइट? तो एज अ होल एटम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे आर लेस एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्जेस। उस टाइप के आयन को कहा जाता है एनाइन। ठीक है बेटा, 2 तरह के आयन्स होते हैं। आई होप द टाइम इज नॉट ओवर। Yes, it is. Okay, just we are going through this. There are 2 types of ions, cation and anion. Cations are positively charged because they have more proton number as compared to that of the electron number. ठीक है, एज यू नो दैट प्रोटॉन्स आर कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस, तो हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव चार्जेस जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है एटम पर डोमिनेट कर रहा होता है, इट इज कैटाइन। सिमिलरली एनाइंस के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं, these are the negative charges। ठीक है, इसके अंदर जब ये ज्यादा होते हैं तो atom as a whole, the ion is negatively charged। We have more protons than electrons in a cation and we have more electrons than protons in an anion। We will be looking at the slide, we'll be looking at this